सेम है जो आपने 10th में पढ़ा था, कुछ नया नहीं करेंगे इसमें। You have n resistor connected in series. Current flowing through all of them is same. Potential difference across first is V1, second is V2. So concept is series combination में current same flow कर रही है and total potential difference is sum of potential difference across individual resistors. So you can write resistors are said to be connected in series. Resistors are said to be connected in series if resistors are said to be connected in series if current flowing through them is same. If current flowing through them is same, and potential difference across the combination is sum of potential difference across combination is sum of potential difference across individual resistors, sum of potential difference across individual resistors as shown in the figure. Consider n resistors R1, R2 up to Rn as shown in the figure. Consider n resistors R1, R2 up to Rn connected in series and current flowing through them is I. If V1, V2 up to Vn denotes, potential difference across n resistors, then total potential difference is sum of potential difference across all. So इसकी अगर मैं equivalent resistance बनाता हूँ ऐसे, we can say that V is equals to R equivalent is R1 plus R2 plus Rn. Resistance R each are connected in series. Equivalent will be NR. Then equivalent resistance is NR. Next to write. Resistors in parallel. Parallel combination या resistors in parallel.
You have n resistors connected in parallel. Potential difference across all resistors is same. If current I flows through the main circuit, it divides. I1 flows through R1, and IN through RN. So parallel में potential difference same, series में current same, and same derivation जो 10th में की थी. So you can write resistors are said to be connected in parallel if resistors are said to be connected in parallel if potential difference across resistors is same. If potential difference across resistors is same, the total current flowing through the combination is the sum of total current flowing through the combination is the sum of current flowing through individual resistors, sum of current flowing through individual resistors, as shown in the figure. Consider n resistors R1, R2 up to Rn connected between 2 points A and B. Therefore, potential difference across each resistor will be same. That is the potential difference between point A and B. Potential difference across each resistor is same. That is potential difference between A and B. If I is the total current, flowing through combination and I1, I2 up to INB current through. सर आपने टोटल करंट आई के बाद क्या बोला था? I be the total current flowing through the combination and I1, I2 up to INB the current through n resistors, then I will be equals to I1 is V by R1. V सबके लिए same है. You can say 1 by R equivalent is and if n equal resistors are connected in parallel, so equivalent resistance is R by N.
equivalent resistance is R by N. Next is Joule's heating law. Joule's heating law. So it's an experimental law. Joules ने दिया था experimental, हम इसको theoretically prove कर देंगे. Joule stated that whenever you have current flowing through a given resistor, heat will be generated. Heat will be generated and the wire temperature of wire increases. And the amount of heat generated, it was found to be directly proportional to square of current, directly proportional to the resistance, and directly proportional to the time for which current flows. कि उसने कहा कि हीट जनरेटेड आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी कि अगर करंट डबल कर रहे थे तो एक्सपेरिमेंटल लॉ है. तो फाउंड दैट कि अगर वो करंट को डबल करता है हीट जनरेटेड 4 टाइम्स हो जाती है. अगर वो रेजिस्टेंस को डबल करता है तो हीट भी डबल हो जाती है. जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगी हीट भी उतनी ज्यादा जनरेट होगी. तो डिड दिस लॉ एक्सपेरिमेंटली, बट हम इसको फिर थ्योरेटिकल प्रूफ कर देंगे. पहले उसका लॉ लिख लें. सो कैन राइट जूल्स हीटिंग लॉ. इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ. It is an experimental law. सर एक्सपेरिमेंटल लॉ के बाद क्या बोला था? कुछ नहीं. It is an experimental law to find the heat energy generated, to find the heat energy generated when current flows through, when current I flows through a given resistor R. When current I flows through a given resistor R. If H is the heat energy generated, then it was found that A part, it is directly proportional to, it is directly proportional to the square of current through the resistor. It is directly proportional to the square of current through the resistor. There is H proportional to I square. There is H proportional to I square. B part. It is directly proportional to the resistance of the conductor. It is directly proportional to the resistance of the conductor. There is H proportional to R. In D part. It is directly proportional to the time for which current flows through the resistor. It is directly proportional to the time for which current flows through the resistor. There is H proportional to T. Combining the results. Constant of proportionality was found to be 1.
इसको this the results in joules. Calories में लिखना है तो 4.2 से divide भी कर सकते हो. Or you can also write as ये तो एक्सपेरिमेंटली हमने लिख दिया सारा. थ्योरेटिकली प्रूफ कैसे करेंगे? अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, इसके दोनों एंड्स के बीच में द पोटेंशियल डिफरेंस इज V. Work done to move charge dq across this resistance is VDQ. VDQ. dq can be written as I is rate of flow of charge. So dq is IDT. There is the heat energy generated. Your work done when current I flows through a resistor having potential difference V in small time dt. टोटल हीट जनरेटेड निकालनी है तो, या टोटल वर्क डन निकालना है तो, और यू कैन से इट्स VIT. और फिर इसको चेंज कर सकते हैं. V को यू कैन राइट एज IR. अगर V को IR लिखो तो इट्स ट्रू फॉर ओमिक कंडक्टर्स और नॉन ओमिक आल्सो. सर नॉन ओमिक आल्सो. नॉन ओमिक आल्सो बिकॉज V इज इक्वल टू IR इज यूनिवर्सल रिलेशन. तो फिर आप उसको I स्क्वायर RT भी लिख सकते हो और V स्क्वायर बाय RT भी लिख सकते हो. इसे डायग्राम बना लो, इसका कंसेप्ट लिख लेते हैं. Diagram draw कर लो. Say of resistor and potential difference V across it. Consider a resistance R. Consider a resistor R across which consider a resistor R across which a potential difference V is applied. Consider a resistor R across which potential difference V is applied. The work done to move charge dq. The work done to move charge dq across the conductor is. फिर ये दो स्टेप लिख लो. dw is equal to vdq और dw is equal to vi dt. dw is equal to vi dt. This is the work done. This is the work done in small time dt. This is the work done in small time dt when current I flows through. When current I flows through a resistor having potential difference V across it. When current I flows through resistor having potential difference V across it.
सर लास्ट लाइन रिपीट करना। एक मिनट आता हूँ मैं अभी, जस्ट होल्ड रखना। कहाँ तक लिखा था हमने? dW is the work done in small time dt when current I flows through a resistor having potential difference V. The total work done. The total work done in time t is thus given by. फिर नीचे के दोनों स्टेप लिख लो. Total work done in time t is thus given by. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर बाय आर टी। इसके बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए? तो वर्क डन निकाला, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इफ दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट देन H is equal to, ये तो वर्क डन निकाला ना अभी, so you can write if this work done is converted into heat, if this work done is converted into heat then H is equals to, अगर पावर निकालनी है तो रेट एट विच वर्क इज डन और रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, तो क्या कर देंगे? dW by dt, dW by dt क्या हो जाएगा? पावर तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? VI या I square R या V square by R. So you can write electrical power. Electrical power. The rate at which work is done or the rate of consumption of energy is known as electrical power. Sir, It's known work is as done. rate at which work is done or rate at which electrical energy is consumed is known as electrical power. So this will be VI, or you can say power can be. I square R. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, दिवाली की लाइट सबने देखी है, वो जो लड़ी लगाते हैं बाहर, उसमें 40 बल्ब्स हैं। बेसिक सबको पता है कि उनमें से अगर एक भी बल्ब फ्यूज हुआ तो सारी लड़ी फ्यूज हो जाएगी। सारी बंद हो जाती है, फ्यूज नहीं हो जाते, सारी लड़ी बंद हो जाती है। तो हमने जो फ्यूज था उसको निकाल के डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया, बाकी 39 फिर सीरीज में लगा दिए। पहले 40 थे,
तो एक फ्यूज हुआ, हमने उसको रिमूव करके डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया, 39 फिर सीरीज में लगा दिए। तो अब लाइट ज्यादा होगी या कम? विल इट ग्लो ब्राइटर और लेस ब्राइटर विद रीजन? तो ब्राइटर के है। सर वो ब्राइटर ग्लो करेंगे। ब्राइटर ग्लो करेगी, तो फिर सारी निकाल के एक ही लगा लिया करो, फिर इतनी ज्यादा क्यों लगानी है? ब्राइटर क्यों ग्लो करेगी, बताना रीजन। सर रेजिस्टेंस कम हो गई, हाँ जी सर, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट सही रहेगा। करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, रेजिस्टेंस अगर कम कर दोगे, बिकॉज पहले 40 आर थी, 39 को सीरीज में लगाया तो 39 आर, तो ये फॉर्मूला लगेगा कि v स्क्वायर बाय आर। v सेम है, अगर आप r को कम करोगे तो पावर ज्यादा, सो आउटपुट विल बी मोर। Similarly, 40 watt and 60 watt bulb, they are connected in series in your room, which will glow brighter. 40 watt and 60 watt bulb in your room, they are 40 connected, watt will glow brighter। which will glow brighter, and why? सर 40 वाले की रेजिस्टेंस कम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। सर 40 60 watt, सर सर 60 watt बिकॉज आई तो सर कांस्टेंट और आर उसका ज्यादा है। R किसका ज्यादा है? 40 watt का, 60 watt का? करंट तो सेम है दोनों में सीरीज में, रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है? 60 वाट का 60 वाट, 60 वाट का 60 ज्यादा watt की रेजिस्टेंस ज्यादा है कि 40 की ज्यादा है? 60 वाट की। है, 60 की ज्यादा। R इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय p। जिसकी पावर कम उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, 40 watt की रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होगी? सर लेकिन करंट सेम है ना दोनों के लिए, तो इसलिए यहाँ पे आई तो कर दो, करंट सेम है, करंट सेम है तो आई स्क्वायर आर टी, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा। नॉर्मली घर में पैरेलल में कनेक्शन होते हैं, तो कौन सा ब्राइटर ग्लो करता है, 60 या 40? घर में दो बल्ब लगे हैं आपके, एक 40 वाट का, एक 60 वाट का, ज्यादा लाइट किसकी होती है? 60 वाट। 60 watt की। घर में पैरेलल में कनेक्शन होते हैं, यस सर। यस जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। कम होगी। तो रेजिस्टेंस 60 की कम होगी, 40 की कम होगी? 60 की। 60 की। फिर उनको सीरीज में लगा दिया। मैन्युफैक्चरर ने तो पैरेलल में लगाने के लिए बनाए थे ना, आपने सीरीज में लगाया। मैन्युफैक्चरर ने तो इस फॉर्मूला के हिसाब से बनाया था। तो 60 वाट की रेजिस्टेंस जो थी, बिकॉज उसकी पावर ज्यादा है, 60 वाट की रेजिस्टेंस कम थी। अब 60 वाट की रेजिस्टेंस कम थी, सीरीज में लगाया तो 60 वाट वाला कम ग्लो करेगा, 60 वाट ज्यादा करता, फिर तो फर्क ही क्या आ रहा था सीरीज और पैरेलल में। घर में सीरीज में कनेक्शन क्यों नहीं करते? क्योंकि एक स्विच बंद होगा तो एक डिवाइस बंद होगी, सारे बंद हो जाएंगे, तो इसलिए पैरेलल में कनेक्शन होते हैं। बट अदरवाइज अगर आप सीरीज में लगाओगे तो 40 वाट वाला ज्यादा लाइट देगा 60 वाट से। तो 40 वाट वाला ज्यादा इसलिए देगा ना क्योंकि उसमें क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम रेजिस्टेंस ज्यादा, ज्यादा। हाँ 40 वाट की रेजिस्टेंस ज्यादा है। बिकॉज रेजिस्टेंस निकालने के लिए किसी भी डिवाइस की कभी भी आपने आई स्क्वायर आर फॉर्मूला यूज नहीं करना। बिकॉज मार्केट से जब आप डिवाइस लेके आते हो, आपसे इलेक्ट्रिकल हीटर लेके आए, गीजर लेके आए, एसी लेके आए, कुछ भी लेके आए, तो दो चीजें मेंशन होती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और पावर। और उन्होंने वो डिवाइस बनाई है घर में लगाने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उन्होंने इस फॉर्मूला के हिसाब से रेजिस्टेंस रखी है। तो जितनी हाई पावर डिवाइस घर में है आपके, उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। सो इसलिए अब डिवाइसेस को सीरीज में लगा दिया तो सारा कंसेप्ट उल्टा हो गया। बनी तो वो पैरेलल के लिए थी, हमने सीरीज में लगा दी। नेक्स्ट यू राइट मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम, मेरे पास मान लो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है,
और इसके साथ ये कोई डिवाइस लगाई है हमने बैटरी के क्रॉस। हमें बताना है इसमें पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम कब होगी। तो हमने वो एक कंसेप्ट डेवलप करना है कि इसमें पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम कब होगी। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ई है, रेजिस्टेंस आर है, कैपिटल आर है, इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी? E upon R plus R. Power dissipated will be I square R. और ये मैक्सिमम कब होगी? जब इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। तो हमने वो डिराइव करना है फॉर्मूला। सो कैन इट मैक्सिमम पावर थ्योरम। पहले हम उसको स्टेटमेंट लिख देंगे, फिर उसको प्रूफ करेंगे बिकॉज थ्योरम है। मैक्सिमम पावर थ्योरम, it states that power dissipated in an external resistance R is maximum if external and internal resistances are equal. If external and internal resistance are equal, there is R is equal to small r. Next लिखो proof. Proof. Consider a cell of EMF E and internal resistance R. Consider a cell of EMF E and internal resistance R connected across. Consider a cell of EMF E and internal resistance R connected across. A device having resistance capital R. Device having resistance capital R. The current flowing through power dissipated to be maximum. With respect to क्या differentiate करूं? Small r capital R. कैपिटल R. कर दो differentiate इसको. E square तो constant है, इसको अलग रख लेते हैं. You have to differentiate this term. R square. इसकी differentiation क्या होगी?
This becomes इसकी differentiation r plus r raised to power minus 2. मेडिकल वालों को मुश्किल लगे तो इसके बाद आप ऑन सॉल्विंग करके सीधा यहाँ पे भी आ सकते हो। अगर डिफरेंशिएशन नहीं भी शो करोगे तो मार्क्स नहीं घटेंगे। नॉन मेडिकल वालों को तो ये आसान लगनी शुरू हो जाएगी जब एक बार डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, तो मेडिकल वाले डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऑन सॉल्विंग वी गेट। ये हीटिंग इफेक्ट का यूज होता क्या है? गीजर्स, हीटर्स। गीजर हीटर टोस्टर सर, गीजर्स में, हीटर्स में, ओके। और बल्ब बल्ब में हीटिंग इफेक्ट का यूज करना होता है या कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनटू लाइट एनर्जी करना होता है? हीट तो एक अनवांटेड चीज है, उसमें आप चाहते थोड़ी हो कि बल्ब में हीट जनरेट हो रही है। मतलब जहां पे हमें एक्चुअल में चाहिए दैट इज हीटर और गीजर्स, जहां पे यू वांट द हीट टू बी जनरेटेड। ओटीजीज में रॉड होती है जो हीट अप हो जाती है। गीजर के अंदर देयर इज अ कॉइल व्हिच हीट अप, प्रेस जो इलेक्ट्रिक आयरन हम बोलते हैं, देयर इज एन एलिमेंट इन इट व्हिच गेट्स हीट अप। सो जहां पे आप हीट जनरेटेड का यूज कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रिक आयरन में हो सकता है, गीजर्स में हो सकता है। हीटर्स अगेन दो तीन तरह के आते हैं आजकल। सो जो कॉइल वाले हीटर्स हैं दे जनरेट हीट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। और कहीं इसका प्रैक्टिकल यूज करते हो जहां पे हीट जनरेट हो रही है जिसके कारण आपको फायदा मिल रहा है। जहां पे हीट जनरेट होने का आपको फायदा हो रहा है, आप हीट को यूज नहीं कर रहे तो हीट जनरेशन का फायदा हो रहा है। बिकॉज ज्यादातर जगह तो हीट इज अनवांटेड थिंग, आप नहीं चाहते डिवाइसेस में हीट जनरेट हो पर हो रही है। करंट फ्लो करेगी तो हीट निकलेगी, जैसे ये बोर्ड ही है तो इसमें से हीट निकलती है थोड़ी थोड़ी बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक सर्किट इसके पीछे। तो आपके इसके पास बहुत देर तक खड़े रहना इट्स नॉट एन इजी थिंग। मतलब इट्स इक्वलेंट टू कि जैसे आप एलईडी टीवी के बिल्कुल 7-6 इंचेस पे खड़े हो, तो वो अनवांटेड है। मैं कह रहा हूँ हीट जनरेट हो रही है और उसका हमें फायदा मिल रहा है। आपने एक डिवाइस या एक इलेक्ट्रिकल पार्ट के बारे में सुना होगा जिसको हम फ्यूज वायर बोलते हैं। यस फ्यूज क्या होता है? सो हीटिंग जब सर, जब ज्यादा ज्यादा करंट फ्लो करते हैं तो वो मेल्ट हीटर करता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। हीटिंग वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो जब एक लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो करती है, जो फ्यूज वायर होती है दैट इज करंट रेटिंग के हिसाब से मिलती है कि 10 एम्पियर का फ्यूज है, 15 एम्पियर का है, 30 एम्पियर का, कितने एम्पियर का फ्यूज है। एंड नॉर्मली जब आपके घर में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं या आपके ऑफिस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं, इफ इट्स अ 3-phase मीटर, so the circuit is made in such a way that current is divided either equally in all तीनों phases में, और sometimes electrician do is they connect high power devices to one phase and बाकी सारे घर का या ऑफिस का सर्किट डिफरेंट बना देते हैं। बट अगर 2 एसी हैं या 3 एसी हैं उनको एक ही उससे कर देते हैं। बहुत ज्यादा एसी हैं तो फिर लोड को डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट अगर फ्यूज वायर मेल्ट करती है तो एसी बंद हो, नॉर्मल लाइट चलती है, वो उसका रीजन नहीं होता। बट अदरवाइज आइडियली इट शुड बी इक्वली डिवाइडेड इन द 3 phases।
और वो कितने एम्पियर का फ्यूज वायर लगेगी, दैट डिपेंड्स ऑन कि आपका लोड सेंक्शन कितना है। से नॉर्मली आपने इस तरह के न्यूमेरिकल शायद इसमें जिस तरह के आते हैं, कुछ आपने शायद 10th में किए भी होंगे कि आपके घर में 4 ट्यूब लाइट्स हैं 40 वॉट की, 2 पंखे हैं 60 वॉट के, एक एसी है, या कुछ ऐसे 3-4 चीजें दे देंगे, फिर वो बोलेंगे हर डिवाइस अगर 6 घंटे चलती है तो बिजली का बिल कितना आएगा। किए थे ऐसे न्यूमेरिकल्स? Yes, sir. Yes, sir. एक तो उस तरह के न्यूमेरिकल्स +1 में बुक में दिए होते हैं पर आते कहीं नहीं है, वो 10th वाले न्यूमेरिकल है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करो। अच्छा, फ्यूज वायर जो होती है उसकी करंट रेटिंग लेंथ पे डिपेंड करती है उसकी, कि फ्यूज वायर कितनी करंट फ्लो करने से मेल्ट करेगी, ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि फ्यूज वायर की लेंथ कितनी है। No, sir. क्यों? अब फ्यूज वायर मेल्ट करती क्यों है, पहले ये बताओ। व्हाई इट मेल्ट्स? करंट फ्लो होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ तो वो हीट रेडिएट भी करेगी। इंसुलेटेड तो नहीं होती फ्यूज वायर, सबने देखी है, इट्स अ टिन अलॉय नॉर्मल वायर लगी होती है। जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो हीट एनर्जी लूज भी करेगी, और हीट एनर्जी जनरेट भी हो रही है। तो कितने करंट रेटिंग पे वो मेल्ट करेगी, ये लेंथ पे डिपेंड करेगा या नहीं? रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगी। रेजिस्टेंस यस यस सर। रो एल बाई, तो हीट जनरेटेड भी लेंथ पे डिपेंड करेगी, बिकॉज सीरीज में लगती है फ्यूज वायर, पैरेलल में घर के सर्किट के। Series. सीरीज। सीरीज में लगाने का ही फायदा है ना, बिकॉज जो करंट घर में फ्लो कर रही है वो फ्यूज वायर में से भी करे, तो सीरीज में लगी होती है। सीरीज में हीट जनरेटेड का फॉर्मूला I स्क्वायर आर टी, H डिपेंड्स ऑन R डिपेंड्स ऑन L, तो वी कैन से हीट जनरेटेड इन अ वायर इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अब वो किस करंट पे मेल्ट करेगी, ये लेंथ पे डिपेंड करेगा। सोचो थोड़ा सा 11th का कंसेप्ट। वो हीट एनर्जी की जो ट्रांसफर हो रही है एटमॉस्फेयर में, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। Radiation. हीट एनर्जी रेडिएटेड का फॉर्मूला क्या था? हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। ये सिग्मा ए। E A sigma सिग्मा ए A T raised to power 4 minus टी रेज टू पावर 4। वायर की शेप कौन सी है? सिलेंडर। cylindrical. सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? वायर का सरफेस एरिया 2 pi r. 2 pi R. 2 pi R. 2 πr। एल कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड्स पे। हीट एनर्जी जनरेटेड को हीट एनर्जी रेडिएटेड के साथ अगर मैं इक्वेट कर दूं तो दोनों साइड पे एल कैंसिल हो जाएगा। फ्यूज वायर लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। सबसे हार्मफुल ये होता है कि अगर आपके घर में फ्यूज वायर मेल्ट कर गई है और आपने उसकी जगह नॉर्मल कॉपर वायर लगा दी, सप्लाई तो चालू हो जाएगी, फर्क क्या पड़ेगा? High कॉपर वायर tension. विल नॉट मेल्ट। तो जो फ्यूज का पर्पस था कि ज्यादा करंट फ्लो करने से मेल्ट करे, वो मेल्ट नहीं करेगी। अच्छा, आप एज अ फिजिक्स स्टूडेंट मान लो आपके घर में ऐसे ट्रिपल फेज है, 3 फेज मीटर है, एक फेज में सप्लाई बंद है, तो आप उसको किसी वे में चला सकते हो। अब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो कि तीनों फेज में इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। कैन यू डू समथिंग कि आपके तीनों फेजेस में करंट आ रही है, पीछे से गवर्नमेंट ने एक फेज बंद कर दिया,
मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपके घर में 3 फेज मीटर है तो ऐसे 3 फ्यूज लगे होते हैं बाहर, आपके मीटर में, ठीक है। यहां से इनपुट आती है, दिस इज इनपुट कनेक्शंस। यहां से आप आउटपुट ले रहे हो तीनों फेसेस से। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली वाइवा में पूछते हैं। सो O1 O2 O3 आप कनेक्शन ले रहे हो, इधर फ्यूज वायर लगी होती है इसके बीच में, ऐसे इनपुट और आउटपुट को ज्वाइन किया होता है कि यहाँ से गवर्नमेंट की सप्लाई आएगी, फ्यूज वायर में से पास होके O3 में, O3 फिर आगे जहां से भी कनेक्टेड आगे डिवाइसेस के साथ। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मान लो I2 की सप्लाई बंद कर दी गवर्नमेंट ने, ये इनपुट जो आ रही थी ये बंद है, पीछे से फॉल्ट आ गया, बट आपको आउटपुट तीनों में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? मैं अगर इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, यहां से एक वायर लूं, कुछ नुकसान है ऐसे करने का? आउटपुट हाफ हो जाएगी। बिकॉज आपने जो यहां से करंट आ रही थी वो इसको भी दे दी, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आपके तीनों फेज चल जाएंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर गवर्नमेंट ने ये फॉल्ट ठीक कर दिया और यहां से भी सप्लाई शुरू होगी तो सर्किट डैमेज हो जाएंगे। सर फिर नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दो, फिर नहीं डैमेज होगा। आप इसको जब ऐसे कनेक्शन करने हैं ना, तो आप इसको निकाल दो ताकि गवर्नमेंट की सप्लाई शुरू भी हो जाए तो भी आपका सर्किट डैमेज ना हो। बिकॉज गवर्नमेंट ने तो सप्लाई यहां तक दी ना, हमने आगे ओपन सर्किट बना दिया, वो आगे जाएगी नहीं। तो आप ऐसे कनेक्शन कर दो। और नॉर्मल जिसने बिजली चोरी करनी होती है वो क्या करते हैं, इस वायर से इसको निकाल देते हैं। अगर मैं इनपुट को डायरेक्ट आउटपुट में कर दूं तो, बिकॉज गवर्नमेंट की सप्लाई ऐसे आती है, जैसे ये है ना, इधर इसके बाद इधर मीटर लगा होगा, हाँ यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे गवर्नमेंट ने मीटर लगाया जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नोट होती है कि यहाँ से पहले इनपुट आई, फिर यहाँ से फ्यूज में गई, इनपुट आई फ्यूज में गई। अगर मैं इस वायर को निकाल के सीधा यहाँ पे जोड़ दूं, सारे कनेक्शन ऐसे ही कर दिए, तो आपने मीटर को तो बाईपास कर दिया। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट यूज डिजिटल मीटर्स दीस डेज, बिकॉज अगर आप बाईपास करते हो तो ये डिजिटल मीटर में वो एरर कोड आ जाता है। एरर कोड आ जाता है मतलब कि आपने कुछ गड़बड़ किया है, मीटर के साथ टेम्परिंग किया है, तो वो एरर कोड से उन्हें पता चल जाता है कि आपने इसमें कुछ गड़बड़ की थी, आपने इनपुट को डायरेक्ट आउटपुट में जोड़ा था। जब पहले पुराने मैकेनिकल मीटर्स होते थे, बहुत सारे लोगों की आदत थी कि इस तरह के काम करने की, कि बाईपास कर दो, जिसको हम बोलते हैं कि इंडिया में ट्रांसमिशन लॉसेस में सबसे बड़ा लॉस यही होता था, चोरी करते थे जो लोग बिजली की। सो एनीवेज, दीज आर द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की हाउ दे आर मेड। इसके प्लस हमने एक और टॉपिक करना है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस वेरी कैसे करेगी। स्मॉल चेंजेस के लिए हम लेते हैं देयर इज अ लीनियर वेरिएशन। लीनियर वेरिएशन मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी लीनियरली, कि अगर हमने, और ये स्मॉल चेंजेस के लिए, और जैसे अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम भी होगी। अगर मेरे पास एक मेटल है, उसका टेम्परेचर कम करता हूं तो रेजिस्टेंस कम होगी या नहीं होगी? रेजिस्टेंस थी किस रीजन से? बिकॉज ऑफ movement of electrons. कोलिजन्स, कोलिजन्स के कारण थी ना। तो अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूंगा तो जो आप मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हो वो ज्यादा होगी या कम होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Decreases. कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएगी तो, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगी तो कोलिजन्स कम हो जाएंगी। मैं टेम्परेचर कम करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, ऐसा कभी होगा कि रेजिस्टेंस जीरो हो गई? यस यस सर।
So, सबसे पहले मर्करी को सुपरकंडक्टर बनाया था ओम्स ने एट अ टेम्परेचर ऑफ 4.2 केल्विन कि 4.2 केल्विन पे मर्करी की रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है. दैट वाज द फर्स्ट सुपरकंडक्टर व्हिच वाज डिस्कवर्ड. सुपरकंडक्टर मतलब जिसकी रेजिस्टेंस जीरो है. अब जो रिसर्च होती है दैट इज टू फाइंड द सुपरकंडक्टर्स एट हायर टेम्परेचर्स. कि रूम टेम्परेचर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 300 केल्विन. तो हमें इतने लो टेम्परेचर पे सुपरकंडक्टर्स बनाने का फायदा नहीं है 4.2 केल्विन पे या इवन 100 केल्विन पे भी. हमें सुपरकंडक्टर्स का मेन बेनिफिट मिलेगा व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस टू टेम्परेचर एट विच सुपरकंडक्टिविटी इज पॉसिबल एट 300 केल्विन रूम टेम्परेचर पे. तो कोई ऐसा मटेरियल ढूंढना. और सुपरकंडक्टर्स का यूज कहाँ होता है सबसे ज्यादा अभी प्रैक्टिकली? क्रायोजेनिक्स पता है किसी को क्या होता है? क्रायोजेनिक्स So preservation of things at very low temperature. so branch of physics which deals with the low temperatures basically that is called cryogenic. IIT खड़गपुर में एमटेक भी होती है. इसमें एमटेक क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजीज की लो टेम्परेचर टेक्नोलॉजीज. इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ होता है? से सुपर कंप्यूटर्स बनाने में. सुपर कंप्यूटर्स हैव हाई प्रोसेसिंग पावर. तो अगर उनके प्रोसेसर को बहुत लो टेम्परेचर पे नहीं रखोगे लॉट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड. रेजिस्टेंस होगी, डाटा लॉस होगा. सिमिलरली सैटेलाइट्स में, मिसाइल्स में, so they use the cryogenic engines which operate at very low temperature so that there are no data losses. Because इंडिया पे बैन है. इंडिया को मतलब सॉर्ट ऑफ यू कैन से यूएन ने बैन लगाया हुआ है. नोबडी कैन सेल क्रायोजेनिक इंजन्स टू इंडिया. तो इसलिए इंडिया ने खुद डेवलप किया अपना. बिकॉज जब बैन लगा उसके एक साल में. एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज इंडिया को लगा कि अगर बिकॉज इंडिया यूज कहाँ करता है और बैन लगाने का रीजन बिकॉज अमेरिका का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू था कि इंडिया इसको आईसीबीएम में यूज करेगा. इंडिया कह रहा था मेरे को सैटेलाइट में लगानी है. बट जब बैन लगा तो इंडिया ने अब दोनों जगह यूज करता है. आईसीबीएम में भी इसी को यूज करता है एंड सैटेलाइट्स में भी नहीं यूज कर रहा है क्रायोजेनिक इंजन को जो खुद इंडिया ने बनाए हैं डीआरडीओ और इसरो ने मिलके. सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसको वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, सुपरकंडक्टर्स एंड इनके न्यूमेरिकल्स. ICBM की फुल फॉर्म क्या है? ICBM इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. तो जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकती है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जिनको बोलते हैं. सो ICBMs आर ऑलवेज डेंजरस बिकॉज आप बहुत सारी कंट्रीज को रेंज में ले लेते हो. जैसे इंडिया की जो ICBM है दैट टेक्स ऑल ऑफ यूरोप इन द रेंज कि आप इंडिया में बैठ के यूरोप पे अटैक कर सकते हो यूजिंग ICBMs. तो इसलिए बैन लगा था कि इंडिया ICBM में यूज करेगा तो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आ जाएंगी इंडिया की. सर कल टेस्ट कितने बजे है? 2 टाइम, एक सुबह 7 बजे और जिसने 7 बजे नहीं देना उसका 12:30.